नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौआयिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणा विभाव निदाकार रामजी कृत सोठाड़ा चाले છે અહીં ચોથી ભાવ એનો 14મો શ્લોક છેલ્લો છે ચોથી ભાવ છે ને 14મો શ્લોક નિરતિચાર સાવધ વ્રત પાળવાનું ફળ એ છેલ્લો શ્લોક છે 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे मरण समय संन्यास धारी तथु दोष नसावे यो सावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे कहते सही नर जन्म पाय मुनि है वह शिव जावे तो शू के જે જીવ 12 વ્રતોનો 5-5 અતિચારોને લગાડતો નથી અતિચાર છે વ્રતને એ વ્રત કોને હોય એ પહેલી વાત આવી ગઈ છે કે સમ્ય જ્ઞાન હોય પછી ચારિત્રના 12 વ્રતના વિકલ્પો હોય સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક દર્શન વિના ન હોય અને સમ્યક દર્શન એ આત્મા અખંડ શુદ્ધ આનંદના સ્વભાવના આશ્રય વિના સમ્યક દર્શન હોય સમજાય છે કાંઈ આ નિમિત્તથી પણ સમ્યક દર્શન ન થાય દયાદાન વ્રતના રાગ મંદ પરિણામથી સમ્યક દર્શન ન થાય વર્તમાન પ્રગટ પર્યાય જેટલો સૂક્ષ્મ જ્ઞાન દર્શન વિકાસ છે એને આશ્રય સમ્યક દર્શન ન થાય સમ્યક દર્શન એક રૂપ ચિદાનંદ સ્વરૂપ ભૂતાર્થ આત્મા ધ્રુવ 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 આનંદ ગુણનો પિંડ આત્મા વસ્તુ ધ્રુવ એના આશ્રય એના અનુભવમાં એમાં એકાગ્ર થતા સમ્યક દર્શનની પર્યાય પ્રથમ મોક્ષ માર્ગનો અવયવ પહેલો પ્રગટ થાય સમજાય છે કાંઈ એ સમ્યક દર્શન વિના સમ્યક જ્ઞાન હોય નહીં અને સમ્યક જ્ઞાન વિના વ્રત આદિ અને ચારિત્ર પારિત્ર હોય નહીં સમજાય છે કાંઈ ચીજ શું છે શું શેમાં ઠરવાથી ચારિત્ર થાય ચારિત્ર એટલે ઠરવું રમવું શેમાં ઠરવાથી પણ કઈ ચીજ છે એ ચીજ સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં પૂર્ણ આનંદ ધ્રુવ અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ કરતા પૂર્ણ શુદ્ધની એકતા અંદર પ્રગટ થાય નિર્વિકલ્પ આનંદના અનુભવ સહિત એને સમ્યક દર્શન કહે છે બોલમે એ સમ્યક દર્શન કારણ છે અને સાથે આત્માનું જ્ઞાન થાય તે કાર્ય છે તો એક હારે દીવો અને પ્રકાશ એક હારે છતાં દીવો એ કારણ છે પ્રકાશ તે કાર્ય છે એક હારે એમ આત્મા શુદ્ધ આનંદ કંદનું ભાન અંતર્મુખમાં રાગ વિકલ્પથી દયાદાન આદિ કસાયની મમતાથી મારું કાર્ય થાય નહીં શરીરની અનુકૂળતાની નિમિત્તતાથી પણ મારું કાર્ય થાય નહીં મારું કાર્ય તો શુદ્ધ ચૈતનના અંતર અનુભવની દ્રષ્ટિએ થાય એવું જાણીને અનુભવીને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય એને પ્રથમ નિર્વિકલ્પ આનંદનો અનુભવ થાય એવા આનંદમાં એને પ્રતીત થાય કે આ આખો આત્મા અતિન્દ્રિય આનંદમય છે
એ આનંદમય છે, એમાં ફરવાથી મને આનંદ વધારે શક્તિમાંથી પ્રગટ થશે. એવું સમ્યક દર્શન આ આત્માના આનંદના ભાનવાનું થાય ત્યારે તેને સમ્યક જ્ઞાન આત્માનું અને રાગ બાકી રહે એનું એને જ્ઞાન થાય. સમજાય છે કાંઈ? આત્માનું જ્ઞાન દર્શનમાંથી એટલો આત્મા અખંડ શુદ્ધ એની પ્રતીતિનું ભાન ને અનુભવ. જ્ઞાન આત્મા પવિત્ર છે ને સાચી અલ્પજ્ઞતા વર્તમાન વર્તે છે અને રાગ આદિ જે ભાવ આવે એ બધાને જાણે તેને સ્વસન્મુખતાના જ્ઞાન વાળું તેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે. ભારે સરતું એવા જ્ઞાન સહિત પંચમ ગુણસ્થાનમાં શ્રાવકને સ્વરૂપની શાંતિ પ્રગટે. અંદર વિશેષ સમ્યક દર્શન ઉપરાંત સ્વરૂપમાં બીજા કસાયનો અભાવ કરીને, સમ્યકમાં તો એક અનંતાનુબંધીનો અભાવ છે અને ભ્રાંતિનો અભાવ છે. શ્રાવક એટલે આ વાડામાં રહેલાની વાત નથી. આ તો ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલા એની વાત છે. એ અંદરના આત્માના આનંદનું ભાન અને શાંતિની અવિકારી શાંતિની વૃદ્ધિ પાંચમે ગુણસ્થાને થાય કે જે શાંતિ સર્વાર્થિતના સંકિતી દેવ કરતા પણ વધારે શાંતિ હોય. સમજાણું કાંઈ? સર્વાર્થિતના દેવ સમ્યક દ્રષ્ટિ અનુભવી છે પણ એને ચોથું ગુણસ્થાન પાંચમું નથી. પાંચમા ગુણસ્થાનમાં મનુષ્યને સમ્યક દ્રષ્ટિ સર્વાર્થિતના દેવ કરતા પણ અંતરનો શાંત ભાવ અવિકારી પરિણમન ચોથા ગુણસ્થાન વાળા એકાવતારી સ્વાર્થિત દેવ કરતા વધી ગયેલી શાંતિ હોય છે. એવી ભૂમિકામાં આવા 12 રત્ના વિકલ્પો હોય છે. બલદાભાઈ, લોકોને એકી તત્વો વાનની ખબર ન મળે. આ 12 થી બાને કે આ વ્રત છે ને અતિચાર ટાળો ના કરો. મૂળ ન મળે ત્યાં વ્રત ક્યાંથી આવી રાખો? મૂળ નાસ્તી કૂતો શાખા. મૂળ ન મળે ને શાખા ક્યાંથી આવી ગઈ? કોણ જાણે પૂછો અડાયા માણસને. કોઈ ઠેકાણે મૂળ વિના ઝાડ ખાતા હોય કે છે કદાચ ત્યાં તો કે છે એવા 12 વ્રતના વિકલ્પ અહિંસા અણુવ્રત એવા પંચમ ગુણસ્થાનમાં બીજા ત્રસને તો મારવાનો ભાવ હોય નહીં. સંકલ્પથી વિરોધીની આદિનો ભાવ હોય હિંસાનો. હિન્દી પ્રવચન ક્યાંથી આવ્યા વળી પાછળ? चौथी गाड़ है, उसमें 15वां श्लोक है. हिंदी में, गुजराती में 14वां है, हिंदी में 15वां है ना? आशीष ये 15वां चले. पद्मोत्सव वाक्य થઈ ગયો. हिंदी में 15वां कि जो जीव 12 व्रतों के 5 अतिचार को नहीं लगाता, ये व्याख्या चलती है. पर किसको व्रत है वो बात पहले चली. क्या चली कि आत्मा शुद्ध आनंद ज्ञाता दृष्टा है. ऐसी अंतर में पुण्य पाप का भाव की रुचि छोड़कर और संयोगी निमित्त की रुचि छोड़कर ज्ञानानंद स्वभाव की अंतर्मुख की अनुभव दृष्टि हो, उसका नाम सम्यक दर्शन पहले कहने में आता है. भैया समझे? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारि प्राणी मोक्ष मार्ग आता है ना, उमा स्वामी. सम्यक दर्शन ज्ञान चारि प्राणी मोक्ष मार्ग. तो सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? तत्वार्थ सज्ञानम सम्यक दर्शन.
तो तत्वार्थ किसको कहते हैं कि जीव विनायक चैतन्य मूर्ति भगवान शुद्ध पूर्ण है, ऐसी अंतर्मुख होकर पुण्य पाप का भाव आश्रव तत्व है। शरीर कर्म ये अजीव तत्व है। ये अजीव तत्व की रुचि छोड़कर और शुभ शुभ भाव जो होता है वो आश्रव तत्व है, वो भी रुचि छोड़कर आश्रव ने अजीव से भिन्न एकिला विनायक तत्व चिदानंद भगवान आत्मा है। ऐसी स्वसन्मुखना राग से विमुख होकर, निमित्त से विमुख होकर, पूर्ण स्वभाव से सन्मुख होकर अंतर में दृष्टि होना, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। वो तो लंबी समझे कि नहीं उसकी भाषा सादी हिंदी है, बहुत हिंदी हमारा आती नहीं है, साधारण हिंदी है। तो काठियावाड़ी है ना, हम तो सब पाठा समझ में आया। भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, जिसने एक समय में 3 काल 3 लोक देखा, ये भगवान ना मुख में जो सम्यक दर्शन की व्याख्या आई, वही व्याख्या भगवान कुंकुंदाचार्य देव की है। समझ में आया। 2000 वर्ष पहले संवत 49 में भरत क्षेत्र में कुंकुंदाचार्य नग्न मुनि दिगंबर था, जो भगवान पास गए थे, सिमंदर परमात्मा पास है। 8 दिन रहे थे, ત્યાં से आकर यहाँ समयसार आदि बनाया। ये प्रमाणे साहु को या दौलत राम जी पण छठाड़ा में संतो मुनियो तीर्थंकरों कहते हैं, उस प्रकार हिंदी में छठाड़ा बनाया। अपना घर की कोई बात है नहीं। समझ में आया। तो कहते हैं कि 12 व्रत किसको होता है? 12 व्रत पंचम गुण स्थान में होता है। समझ में आया। तो पंचम गुण स्थान किसको कहते हैं? सर्वार सिद्धना देव है एक भवतारी, उसको सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन में उसको जितनी आत्मा का अनुभव की शांति मिली और उसका रागादि दूसरा 3 कषाय का भाव है, उससे पंचम गुण स्थान में वो करता शांति વધારે होती है। चौथे गुण स्थान है ना वो, અને पंचम गुण स्थान ना श्रावक सच्चा श्रावक की बात चलती हो, हराका नहीं बात यहाँ है नहीं। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ का वाणी में आया कि पंचम गुण स्थान का श्रावक ऐसा है कि सर्वासिद्ध देव करता भी उसको आत्मा की शांति और कषाय भाव 2 कषाय चढ़ गया है, अनंतानुनंदी और प्रत्याख्यानी। एक प्रत्याख्यानी न संजल 2 रहा है। तो पंचम गुण स्थान में श्रावक को अपना अनुभव में आत्मा आनंद कर्ण शुद्ध ज्ञाता दृष्टा ऐसा आ गया है, और उपरांत शांति भी दूसरा कषाय का अभाव से बढ़ गई है। ऐसा पंचम गुण स्थान में ऐसा 12 व्रत का विकल्प आता है, जो पुण्य बंध का कारण व्यवहार चारित्र कहने में आता है। समझ में आया भैया? सूक्ष्म बात है। यानी अनंत काल में पत्ता चैतन का लिया ही नहीं, पत्ता 9वीं विवेकानंद बैर गई, वो आ गया ना उसमें पहले, मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, पर आचम ज्ञान बिन लेख सुख न, पता है कि उसको फैला गया है, श्रद्धारंग में फैला गया। क्या करिए, कितना में है वो मुनि व्रत धार आता है कि नहीं है? 4th ની 5મી, આ 4થું ચાલે એની ને। हाँ आते हैं, देखो 5મી है, 5वां, ये 4थी धारनी 5वां श्लोक है। ये 99 है, 100 में 1 कम। देखो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे छे। आया कि नहीं? बताया कि नहीं?
हाँ हिंदी से कैसे चित्र वगैरह ठीक है। देखो पांचवा श्लोक है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे ज्ञानी के चिन्नाई त्रिगुप्ती ते सहज करे थे। करोड़ों मनुष्य भव जब मिला तब मनुष्य भव अनंत काल मिलते हैं, उसमें भी मनुष्य भव में करोड़ों वर्ष तप करे पर आत्मा का ज्ञान बिना उसमें कुछ लाभ है नहीं। मुनि व्रत धार अनंत बार विवेक उपजायो। मुनि व्रत धार 28 मूल गुण पंच महाव्रत अनंत बैर लिया पर निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या अर्थ कहते हैं कि पंच महाव्रत में 28 मूल गुण का विकल्प भी दुख रूप है, राग है, आश्रय है। समझ में आया? क्या क्या देखो, मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो पर आत्मज्ञान कि विकल्प पुण्य का परिणाम है। पंच महाव्रत का 28 मूल गुण का ये महाव्रत का विकल्प जो राग है, ये विकार है, ये दुख है, आश्रय है। उसके पालन किया तो स्वर्ग में गई। पर राग रहित मेरी चीज आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। बराबर है? आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है, उपमाव्रतना व्रतना विकल्प की भिन्न है। ऐसा आत्मा का अनुभव की दृष्टि किए बिना उसको अंश भी आत्मा का आनंद आया नहीं। पंच महाव्रत पाले न आनंद आया, क्योंकि पंच महाव्रत राग है, पुण्य है, दुख है। ये बलदेव भाई राग दुनिया ने सुना ही नहीं वितराग महाराज। साचा पंच महाव्रतों चोखा सम्यक दर्शन विनाना 28 मूल गुण उगा हार एक बार हार इंद्री दमन आवश्यक समय 24 आवश्यक बराबर हो सम्यक दर्शन करना। ये शुभ सम्यक दर्शन हो तो भी ये है तो रागी है, वही वंदना का कारण। सम्यक दर्शन मुनि को है, सच्चा मुनि, उसको भी पंच महाव्रत का विकल्प आता है, राग है, आश्रय है, दुख है, विकार है, बंध का कारण है। ऐसा ज्ञानी जानते हैं। समझ में आया? नहीं आते भाई, बहुत बात अनंत काल ने उसने तत्व को सुना ही नहीं। आई तो कहते हैं कि आत्मदृष्टि बिना, अनुभव बिना, आत्मज्ञान के बिना उसने 6 मूल गुण अनंत बैर पाला। नग्न दिगंबर हजारों रानी का त्याग मुनि हुआ, आनंद को अलिश न पाया, क्योंकि आनंद तो आत्मा में है। वो महाव्रत का परिणाम तो शुभ है, राग है, दुख है, उसमें आनंद नहीं। अरे राड पाड़े महाराज અમે પાડીએ છીએ ને, ધૂળ પડે શું સાંભળતો કરો, હવે તને ખબર નથી કેજી શ્રદ્ધાની ખબર ન મળે, જ્ઞાનની ખબર ન મળે। आए तो कहते हैं निज आत्मज्ञान हो, भगवान का ज्ञान नहीं, भगवान परद्रव्य है, सिद्ध परद्रव्य है, अपना निज शब्द पढ़े ना, तो निज आत्मज्ञान बड़ा शब्द है, उसमें बहुत दादर में सागर भर दिया है। दौलत राम जी सारा शास्त्र का हिंदी में थोड़ा सार भर दिया है, लोगों को अर्थ की खबर न पड़े, कंसल्ट करी दे, बोली दे। निज आत्मज्ञान, अपना आत्मा, ये विकल्प जो व्रत आदि का है, राग से भिन्न है। ऐसा अंतर का आत्मज्ञान, आत्मा अनुभव बिना अंशे भी अतीन्द्रिय आनंद का सुख पाया नहीं। उसका अर्थ के आत्मा का ज्ञान बिना ऐसा पंच महाव्रत अनंत वेर पाला तो दुख पाया, ऐसा अर्थ होगा नहीं भैया? दुख आया, दुख पाया ना, ऐसा अर्थ है ना। आत्मा का आनंद न पाया तो आनंद न पाया, दुख पाया, वो होता है उसमें। देखो समझे नहीं, कहा यानी ऐसा मान लेगा, हम समझते हैं, समझ बप्पमान जिंदगी अनंत नहीं गई, चली गई हमने समझ में। बप्पमा એટલે આંધળામાં,
अज्ञान में अनंत काल चला गया और वास्तविक तत्व की क्या दृष्टि है और वास्तविक तत्व का ज्ञान क्या है और वास्तविक तत्व पूर्वक 12 वर्ष का विकल्प क्या स्वरूप है उसका भी उसने बोध किया। आए तो वो कहते हैं आज चौथी साल की 5वीं गाथा हो, आप 15वीं चलती है, समझ में आया? चलती 15वीं है, वो 5वीं थी। तो आत्मज्ञान, जो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, आत्मा में बेहद आनंद ने ज्ञान पड़ा है, ऐसा आनंद गुण का पिंड प्रभु, वो पिंड प्राप्त तो आश्रव तत्व है, शरीर वाणी कर्म अजीव तत्व है साथ में। 15वीं चलता है ना, 15वीं 170 उसमें जो हुआ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव अपना ज्ञान का अनुभव का आनंद की भूमिका में स्वरूप में स्थिर नहीं रख सकते हैं तो उसको 12 वर्ष का विकल्प शुभ राग आया बिना रहते नहीं। समझ में आया? ये 12 वर्ष का विकल्प है, ये पुण्य बंध का कारण है। आशा है कि नहीं भैया? वो कहते स्वर्ग मिलेगा, उससे स्वर्ग मिलेगा। जितना स्वरूप की दृष्टि में अनुभव हुआ है उससे संबंधित रहोगी भैया। सूक्ष्म बात है भैया, बहुत लोगों में आचार्य गड़बड़ बहुत चली है। ये गड़बड़ हमें आवाज पथराती है ना, ऐसा लगते करे एकांत है भगवान सुन तो से प्रभु, तेरी चीज निराली है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ जो फरमाया ऐसा मार्ग दूसरे में कहीं है? वितराग परमेश्वर सर्वज्ञ देव एक समय में 3 काल 3 लोग जिन्हें देखा, उसने सम्यक दर्शन ज्ञान का ऐसा स्वरूप कहा है। समझ में आया? सर्वज्ञ सिवाय दूसरा में तो कोई मार्ग है नहीं। तो कहते हैं ऐसे पंचम गुण स्थान वाला जीव 12 व्रत का पालन करे, शुभ राग है, शुभ राग, पर पीछे स्वरूप की दृष्टि ने स्वरूप का आनंद की शांति है, इतना धर्म है। समझ में आया? जितना 12 वर्ष का विकल्प आता है ये पुण्य बंध है। तो कहते हैं 5 अतिचारों को नहीं लगाता। पीछे मृत्यु काल में, जब मृत्यु काल आता है तब समाधि धारण करके देखो, शांत 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 अंतर समाधि आनंद स्थिर होकर संज्ञा धारण करे, उनके दोषों को दूर करता है। सावक समाधि मरण में आत्मा का आनंद में अतीन्द्रिय आनंद में दृष्टि देकर शांति में रहते हैं। सारे समाधि मरण उसको होता है, अंतर में शांति होता है तो समाधि मरण होता है। इस प्रकार शावक के व्रत पालन करके सूर्य में स्वरत तब उत्पन्न होता है। 16वां स्वर्ग राग है न, इतना पुण्य हो जाएगा। मुनि को भी जब लग वितरागता पूर्ण न हो तब लग आत्मा का अनुभव में 3 कषाय का अभाव है, इतना तो संभव निद्रा है। उसको भी जितना पंचमहावर्त का परिणाम आता है वो भी शुभराग आश्रय है, उसे बंद हो जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, संभव निद्रा नहीं। समझ में आया भैया? समझ में आया कि नहीं? उत्पन्न होता है, वहां से मृत्यु प्राप्त कर देखो। सम्यक दृष्टि सावक अपना स्वरूप की दृष्टि अंतर में रखकर शांति का वेदन करते, आखिर में समाधि मरण करके स्वर्ग में जाते हैं। बाहर में अच्युत स्वर्ग है ना, अच्युत देवलोक में जाते हैं। वहां से मृत्यु प्राप्त कर ત્યાં की स्थिति पूरी होकर मनुष्य पर्याय पाकर यहाँ से मनुष्य होता है और अपना अपूर्व काम रह गया, वो मुनि होकर मोक्ष जाते हैं। सावकपणा में मोक्ष कभी होता नहीं। समझ में आया? भले पंचम गुण स्थान में अनुभव दृष्टि एकावतारी हुआ, पर मुनि जब हो दिगंबर संत आत्मा का आनंद में झूलते झूलते झूलते
इतना अतीन्द्रिय आनंद तीन कषाय का अभाव में आते हैं, तब उसको दग्न दशा दिगंबर हो जाती है। दिगंबर दशा वस्त्र पात्र लेने का उसको विकल्प होता नहीं। ऐसी दिगंबर मुनि दशा हुई बिना मोक्ष कभी होता नहीं। समझ में आया? गृहस्थाश्रम में वस्त्र पात्र सहित हो कैसे हो सकता है? पंचम गुणसान हो सकता है, मुनि नहीं हो सकता। मुनि बिना मुक्ति कभी होती नहीं। वो कहते हैं देखो, मनुष्य पर्याय पाकर मुनि होकर मोक्ष जाता है। स्वर्ग में से निकलकर उच्चम कुल में पुण्य के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ अल्पकाल में पीछे गृहस्थाश्रम छोड़ देते हैं। मुनिपना आत्मा में आनंद में अतीन्द्रिय आनंद में झूलते उग्र पुरुषार्थ से शांति का वेदन करते करते पंच महावर्त का पहले विकल्प आता है, फिर तो उसको भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर होकर केवल ज्ञान को पाता है। समझ आए? संलेखन ने व्याख्या करे, नीचे नोट है ना, नोट। क्रोधादि के वश होकर विष खाना, शस्त्र अथवा अंत्याग आदि से प्राण त्याग किया जाता है, उसे तो आत्मघात कहते हैं। किंतु संलेखना में सम्यक दर्शन सहित है। संलेखना आत्मघात नहीं, या आपघात नहीं। आत्मा संलेखना में आनंद कंद की भूमिका पास हुई अंदर। सम्यक दर्शन सहित आत्म कल्याण के हेतु अंतरना आनंद में रहने के कारण, अतीन्द्रिय आनंद में जुड़ने के कारण काया ने कषाय को क्रश करते, काया भी क्रश पड़ती है, कषाय भी पतला हो जाता है। सम्यक आराधना पूर्वक आत्मा की शांति निर्विकल्प आनंद की आराधना पूर्वक समाधि मनन होता है। इसलिए वह आत्मघात नहीं, ये तो धर्म ज्ञान है। आत्मज्ञान घात नहीं है, लोगों के लिए मरी जाते हैं नहीं। सम्यक आत्मा का अनुभव में आनंद कर्ण में झूलते शरीर का क्रश होना, कषाय यदि थोड़ा पतला है उसको भी क्रश करते हैं और अकषाय भाव आत्मा का उग्र करते हैं। ऐसा में देख छूट जाना, वो तो आत्मज्ञान सहित धर्म ज्ञान है, उसको समाधि मरण कहते हैं। समझ में आया? अच्छा देखो भावार्थ, जो जीव शावक के ऊपर कहे हुए 12 व्रतों का विधि पूर्वक हो जीवन पर्यंत पालन करते हुए उनके 5-5 विचारों को टालता है, अच्छे शास्त्र में बहुत अधिकार है ना सब अधिकार। मृत्यु काल में पूर्व अपराधी दोषों का नाश करने के लिए विधि पूर्वक समाधि मरण संलेखन धारण करके उसके 5 अतिचारों को भी दूर करता है। वह आयु पूर्ण होने पर मृत्यु प्राप्त कर, आयु पूर्ण होने पर मृत्यु होती है उसका भी, आगा पीछा मृत्यु होता नहीं। इस समय जहाँ होने का आयु पूर्णता होता है। 16 में स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। तो उत्कृष्ट बात करिए, कोई 8वें 5वें 10वें में स्वर्ग जाए, कोई शुद्ध में भी जाए, कोई शुद्ध में देवलोक है पहला, यहाँ भी उत्पन्न हो, पर उत्कृष्ट जाए तो 16 में जाए, सावक है। फिर देवायु पूर्ण होने पर मनुष्य भाव पाकर, मनुष्य भाव बिना मुनिपना होता नहीं। देव में मनुष्य नहीं, सम्यक दर्शन है। नारकी में सम्यक दर्शन है, पशु में पंचम गुणस्थान है। समझ में आया? पशु है ना, पशु उसको 5वां गुणस्थान सावक होता है। असंख्य सावक है, अभी भी बार और द्वीप है ना, और द्वीप बार है ना, असंख्य द्वीप समुद्र, संयम समुद्र, उसमें असंख्य सावक है। सुनाएंगे नहीं? अडादी बार, अडादी तो मनुष्य का है, उसमें तो संख्यात मनुष्य है। अडादी बार असंख्य समुद्र है, दरिया है, समुद्र और द्वीप है ना, असंख्य बार। उसमें एक संयम समुद्र में असंख्याता संकीति 5वां गुणस्थान वाला पशु पड़ा है। कोई को तो अवधि ज्ञान है, कोई को जाति स्मरण है, ऐसा सम्यक अनुभव वाला हो, आत्मदर्शन वाला, ऐसा संघ सावक संयम समुद्र में पड़ा है, पर उसमें मुनि पड़ा नहीं आता। नारकी और मनुष्य देव में 4था गुणस्थान होता है, पशु में पंचम होता है,
मनुष्य को तो चौथे से केवल ज्ञान शुद्धि प्राप्त होता है। समझ में आया? ये पशु नहीं समझे वो। 2.5 बार है भैया। समुद्र है, द्वीप है, मगरमच्छ है, मच्छी है, संकित हो आत्मज्ञानी। आत्मा का अनुभव करने वाला, आनंद का अनुभव करते करते पंचम गुण स्थान वाला, पंचम गुण स्थान वाला संख्या बार करा है पशु। ये मतलब नहीं, कौन जाने भगवान जाने कौन है। मनुष्य मां तो मनुष्य थोड़ा है, भगवान ने असंख्य सावक करा है। परमात्मा केवल ज्ञानी त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवे पंचम गुण स्थान वाला असंख्य सावक कहा है। समझ में आया? तो मनुष्य परमा तो असंख्य है नहीं, पशु में है बात। समझ में आया? तो कहते हैं कि पूर्ण शुद्धता प्राप्त करने का एक मनुष्यपना ही है, दूसरा में है नहीं। तो अपना आत्मा का आत्मा का आनंद सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान जैसा सर्वज्ञ परमेश्वर देखा है, ऐसा आत्मा का आनंद अनुभव हो तब उसको सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? है? ऐसा है, अनादि है। दुनिया मान ले इसलिए कहीं दुनिया हो लिमोड़ी को नीलमणि मान ले तो लिमोड़ी होते नहीं, वो नीलमणि मान ले तो नीलमणि हो जाती है। ऐसे सम्यक दर्शन मान लेगा मेरी गुरु साहब की श्रद्धा है और नृत्य की श्रद्धा संकित है ही नहीं। समझ में आया? है तो अनंत बैर नवमी गिरी गई, तब ऐसा तो अनंत बैर माना था, अनंत बैर नवमी गिरी गई। समझ में आया? दिगंबर लिंग धारण करके, इच्छा विमोह पालन करके, हजारों रानी का त्याग करके आया ना पहले मुनि सुव्रत। समझ में आया? सम्यक दर्शन भगवान इसको कहते हैं। भूयत्थम सिद्धो खलो समाइठी हवई जीव। भगवान आत्मा समय सार की 11वीं गाथा में है। भूयत्थम सिद्धो भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप पूर्णानंद अनंत गुण का पिंड निर्विकल्प आनंद, वो अंतर सन्मुख होकर पुण्यपाद का विकल्प ना राग से विमुख होकर, निमित्त से विमुखता होकर, अंतर आनंद में स्वरूप में सन्मुख होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन सहित प्रतीति हो, उसका नाम सर्वज्ञ परमात्मा सम्यक दर्शन कहते हैं। भैया समझ में आया? ये बिना सब मिथ्या दृष्टि है। चाहे तो नव तत्व ने विकल्प सहित माने, चाहे तो देव गुरु शास्त्र ने माने, एने मान्या बिना शुक्ल लिखा तो होती नहीं। नवमी द्विगीत शुक्ल लिखा लेकर गई तो नहीं भैया, नवमी गीत आया ना पहला मुनि धार अनंत बैर गृह शुक्ल लिखा हो, अनंत बैर शुक्ल लिखा हो रही। शुक्ल ध्यान दूसरी चीज, शुक्ल लेख दूसरी चीज। शुक्ल लिखा तो रवि को भी होती है, शुक्ल ज्ञान दूसरी चीज। ये तो आत्मा का अनुभव पीछे शुक्ल ज्ञान आत्मा का नुकसान होता है। शुक्ल लिखा अनंत बैर दरेक प्राणी को आ गई। नवमी गृह गई अनंत बार, सुना नवमी गृह है ना? गृह 14 राज पुरुष प्रमाण है, गृह ज्ञान है क्या माथे ऊपर। भगवान केवल ज्ञानी परमात्माए आप पुरुषाकार लोग को देखा है। गृह ने स्थान में 9 पाठड़ा गृह का है, ત્યાં 31 સાગરૂપમની સ્થિતિ है। अनंत बैर जी पंच महावर्त का परिणाम, 28 का परिणाम, हजारों रानी का त्याग, बार मायना आपा का बाप, ऐसी शुक्ल लिखा करके नवमी द्वीप अनंत बैर जी। समझ में आया? आत्मा का संस्कार इसरिया नहीं है। शुभ भाव, शुभ भाव, ये शुक्ल लिखा नो शुभ भाव
ऐसा शुभ भाव कि दूसरा देवलोक की इंद्राणी चला में आवे तो चले नहीं, ऐसा उसका शुक्ल दिशा का शुभ भाव होता है। समझ में आया? एक इंद्रिय प्राणी का एक पत्ता भी मरे तो हार न ले, उसके माटी करायला हो। प्राण जाए तो उसके माटी बनेला हार, प्राण जाए तो न ले, ऐसा शुक्ल दिशा आनंद बैर किया। समझ में आया? पर आत्मा का सम्यक दर्शन बिना उसका कुछ लाभ हुआ? वो समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं, देखो जी, सम्यक चारित्र की भूमिका में रहने वाले राग के कारण यह जीव स्वर्ग में देव पद प्राप्त करता है। सावक संकीर्ति आत्मा का अनुभव करने वाला, आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ है, उसको सावक कहते हैं। सावक का वारामा मान जाएगा, सावक भाव नहीं कहते हैं। समझ में आया? पूछड़ी में चिराता भरा हो और ऊपर से साकर नाम रखे है, ये चिराता मीठा न हो जाए, मीठा हो जाए, ऊपर शक्कर रखे न, ऐसे नाम रखे हम सावक के मुनिए, रखो नाम, पूछड़ी रखो, अंदर में क्या मिथ्याद भाव पड़ा है, जहर तो पड़ा है। समझ में आया? राग का क्षण भी दया दान व्रत का विकल्प उठते हैं, राग है। ये राग से अपने को लाभ मानना और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। जहर पड़ा है उसका हृदय में, उसको मिथ्या दृष्टि भगवान त्रिलोकनाथ कहते हैं। उसको संकीर्तित तो नहीं तो सावक तो है नहीं। समझ में आया? वलंदर भाई, अरे बात आखिरी भाई, ये कैसे एक सावक ने अपना स्वरूप की दृष्टि अनुभव की हुई है, मैं आनंद शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं राग आता है वो भी आश्रव तत्व है, शरीर कर्म वो अजीव तत्व है, 7 तत्व में 7 तत्व है न, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निद्रा में 9। तो आज शरीर कर्म वाणी ये सब अजीव तत्व है। अजीव तत्व का द्रव्य गुण पर्याय अजीव में है कि अजीव की पर्याय आती है वो अजीव से होती है, मेरे से नहीं। और अंदर में पुण्य पाप का भाव होता है, शुभ शुभ आश्रव तत्व है। तो आश्रव तत्व अजीव से भिन्न है और अजीव से आश्रव भिन्न है, यानी पुण्य पाप का भाव आश्रव से भगवान आत्मा भिन्न है। ये ज्ञानानंद भगवान आत्मा का आश्रव के तत्व से भिन्न होकर अपना स्वरूप की अंतर अनुभव दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सावक को अंतर में शांति बहुत बढ़ती है। वो तो पहले कहा सर्वार्थी में सम्यक दृष्टि है, एक भवतारी, उससे भी पंचम गुण स्थान वाला सावक को शांति बढ़ गई है। उसको एक कषाय का त्याग है, अनंतानुबंधी का। सावक सच्चा होता है, उसका 2 कषाय का त्याग है, अनंतानुबंधी का न प्रत्याख्यानी का। तो अंतर में शांति का वेदन है जिन सावक को। अनंत गुणी शांति बढ़ गई अंदर में। ऐसी भूमिका में जो 12 व्रत का विकल्प आता है, उसका पुण्य बंद होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। समझ में आया? इतना पुण्य है ना बाकी, तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तो पछीनो ख्याल क्या से आयो? पहले आत्मा जाने बिना परनो ख्याल आसे आए कहां से? एकड़ा का बान नहीं बीजा नु बान होता है, हम कहते हैं। ऐवाज भाई हम ऐसे नहीं बोला तुम्हारा है अमरलाल जी, ये तो रामजुलाई सिंधु आया थे, खबर से नहीं। अरे भगवान प्रभु, तेरी चीज में तो अनंत अनंत शांति आदि पड़ी है, अनंत गुण पर आए, अनंत गुण। भैया कितना गुण है सुना है कभी?
कितना आनंद, 10-20 नहीं, अनंत ना गिनता तो है शास्त्र में। अनंत की गिनती कितनी कि अभी तक जितना सिद्ध हुआ 6 मास में 8 समय में भगवान सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ लिखा है कि 6 मास में 8 समय में सौसेन 8 मुक्ति को पाते हैं। समझे? 6 मास में 8 समय में सबसे 8 मुक्ति पाते हैं। तो अभी तक जो सिद्ध हुआ, अभी तक अनादि से सिद्ध होते आए हैं। अभी यहाँ नहीं है तो महावीर क्षेत्र में भगवान विराजते हैं, त्रिलोकनाथ मंदिर पर विराजते हैं मनुष्य देह। ત્યાં भी आचार्य साधु संत आत्मज्ञानी ज्ञानी केवल ज्ञान पाकर मोक्ष पाते हैं। तो 6 मास में 8 समय में 6 से 8 मुक्त पाते हैं। इतना अनंत पूर्व पावर्तन हो गया। ये सिद्ध की संख्या करता एक शरीर आलू से ना, आलू होते ना, बताता नहीं कर क्या करते आलू काय लील फूक होती है ना, लील फूक पानी ऊपर नहीं, लील फूक क्या कहते हो, काय कहते ना। काय की इतनी कटकी जो टुकड़ा, तो एक टुकड़ा में असंख्य शरीर है उदारी, एक शरीर में अभी तक सिद्ध हुआ उससे अनंत गुना जुड़ है। समझ में आया? इतना सिद्ध हुआ उससे ये कितनी टुकड़ी लो काय, तो उसमें असंख्य तो उदारी शरीर है, असंख्य उदारी शरीर है। इतना में अम्बक नहीं हो यथार्थ है, नहीं तो क्या चले। सर्वज्ञ परमेश्वर श्रीलोकनाथ है, कहा ऐसा है। एक शरीर उसमें से लहो असंख्य में से, तो एक शरीर में इतना आत्मा है कि सिद्ध करता अनुगुणा, और उससे शरीर का रत्कण दुनिया का परमाणु है, उसे अनंत गुणा। जीव की संख्या करता पुद्गल की परमाणु की संख्या अनंत गुणी। समझ में आया? और उससे आकाश सर्वव्यापक है, आकाश सर्वव्यापक, अलोक है ना, अलोक। आप तो लोक है चल गुणमान, खाली अलोक चला जाए आकाश चला जाता है, कहीं अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं। आकाश उसका इतना टुकड़ा को प्रदेश कहते हैं, और ऐसा अनंत आकाश जितना प्रदेश आकाश का है, ये परमाणु की संख्या करता अनंत गुणा है। અને एक अनंत गुणा करता एक जीव में उससे अनंत गुणा गुण है। समझ में आया? કઈ ખબર ન મળે, ઘરના ઠામડાની ખબર હોય, કેટલી થાળીઓ ને કેટલા વાહન, धूल में खबर न મળે એને આ આત્મા કોણ है? ये देह में विराजमान प्रभु आत्मा, ये आकाशना प्रदेशनी संख्या माप अनंत, उसे अनंत गुणा गुण है। ये अनंत गुण नो पिंड आत्मा भगवान, ये पुण्य ने पापना शुभ शुभ रागनी रुचि छोड़कर ऐसे अनंत गुण भगवान की अंतर अनुभव में दृष्टि होना, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसका नाम भगवान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सावक को बार व्रत का शुभ राग आता है। इस शुभ राग से तो स्वर्ग में जाते हैं। भीतरी अंतर में निर्मलता प्रकट हुई है, इतना तो संबर ने निद्रा प्रकट हुई। समझ में आया? सच्चा सावक की बात करते हैं। हम तो सब सावक कहते हैं, हम सावक के जन्म क्या थे, कहते हम सावक है, सावक है। कौन ना पड़े, राजा के पैसा देना पड़ता है कुछ के। समझ में आया? ये प्रसंगति है, किंतु संबंध जरा शुद्ध भाव है। देखो क्या किया, इस सावक को आत्मा का अनुभव पूर्वक जितना राग रहा 12 वर्ष का, उसको पुण्य बंद हुआ, અને संबर निद्रा तो शुद्ध भाव है। अंदर में जितना पुण्य पाप से रहित 12 वर्ष का विकल्प से रहित अंतर का अनुभव में स्थिरता शांति की आनंद की हुई, ये शुद्ध भाव है। ये शुद्ध भाव ये संबर निद्रा है। અને शुभ भाव जो 12 वर्ष का है वो आश्रय है। समझ में आया भैया? दो शुभ अशुभ और शुद्ध भाव की 3 जाति है। तो आत्मा में
हिंसा, झूठों, चोरी, विषय भोग, वासना ये अशुभ भाव है। और ये हिंसा में मिठास आना और दया दान व्रत का परिणाम शुभ है, वो ठीक है। ऐसी भाव आना वो मिथ्या दृष्टि का अशुभ भाव है। और मिथ्या दृष्टि गई पीछे पान, जितना हिंसा, झूठों, चोरी, विषय आदि का भाव पाप, और दया दान व्रत भक्ति पूजा यात्रा का पाप पुण्य, ये दो पुण्य पाप आश्रव तत्व है। ये शुभ भाव भी आश्रव है। और उसमें रहित आत्मा की जितना निर्विकल्प आत्मा के आश्रय शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति प्रकट हुआ, वो शुद्ध भाव है। वो शुद्ध भाव समझ रहा है। समझ में आया? आते तत्व आ गया। देखो, शरीर अजीव आदि, शरीर में कर्म अजीव तत्व है, अजीव है। और माटी है ना, अजीव है। कर्म शरीर अजीव तत्व है, वाणी अजीव तत्व, जड़ तत्व है। ये अजीव हुआ। हिंसा, झूठ आदि ना परिणाम हो पाप रूपी आश्रय परिणाम अशुभ। दयादान व्रत ना पुण्य रूपी आश्रय तत्व। उससे भिन्न भगवान ज्ञान मूर्ति चिदानंदो आत्म तत्व। उसकी अंदर में शुद्ध श्रद्धा ज्ञान प्रकट करना, उस संबर निद्रा तत्व और पूर्ण शुद्धि प्रकट होना, ये मोक्ष तत्व। समझ में आया है? क्या कहते हैं? धर्म के पहले आत्मा राग से भिन्न उसका अनुभव दृष्टि करना, ये धर्म के पहला है। पहला हिकड़ा बिना मींडा कहां से आया? समझ में आया? एक होय त्रण काल में परमार्थ नो पंथ, वितराग परमेश्वर कहेलो भरत इर्वत के महावेदे बदे भूमिका में एक होय त्रण काल में परमार्थ नो पंथ। परमार्थ नो पंथ 2 3 4 होता नहीं। तो समझ में आया है? के जात्मो पुरुषार्थ पुण्य पाप का विकल्प से तद आत्मा उसका पुरुषार्थ किए जा। एम है ये हमारे एक नारद है, वो प्रश्न नारद समझे, तो आ जाएगा समझो है ना। समझ में आया? एम के पुरुषार्थ किए जा। किसका प्रकार का? क्या जड़ का पुरुषार्थ कर सकते हैं आत्मा? शरीर को हला सकते आत्मा? आत्माती है, अजीव है, उसमें उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है, उसमें उत्पाद पर्याय का होता है, जड़ में जड़ से होता है। क्या आत्मा उसका उत्पाद कर सकता है पुरुषार्थ से? मुंड है मानने वाला। जड़ की पर्याय मेरे से होती है, वाणी मेरे से होती है, ये उत्पाद जड़ की पर्याय का जड़ से उत्पाद होता है। पूर्व की पर्याय का जय, नई पर्याय का उत्पाद सदृशपना का ध्रुव। वो तो दरेक परमाणु का उत्पाद में ध्रुव सत्व उसका धर्म है। ये माने मेरे से जड़ की पर्याय हुई, मैं बोलता हूँ, मुंड है। जड़ की पर्याय को अजीव को जीव माना, अजीव ने जीव माने की मिथ्या दृष्टि। दुखित हो जाए है? विचार वाली कई खबर ही न મળે। वहां से पण नहीं करे विचार दलपत्र में આવતું तो नहीं, ये समझे नहीं सगड़ो सार दलपत्र में આવતું दलपत्र कवि में आए तो कहते हैं जड़ कर्म ने शरीर वाणी स्वतंत्र जगत का पदार्थ, उसकी पर्यायता में आत्मा करता नहीं। जैसा ईश्वर को जगत का करता नहीं, जगत स्वयं सिद्ध तत्व है। ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मी जानते हैं जड़ अजीव तत्व का कोई करना आत्मा नहीं। ये अजीव की पर्याय अजीव से होती है, अजीव का गुण अजीव में है, अजीव का द्रव्य अजीव में है, अजीव का द्रव्य गुण का परिणाम अजीव से होता है। समझ में आया भैया? अजीव की पर्याय अजीव से होती, आत्मा से नहीं। सारी आखिरी बात भाई, ऐसा हाथ चलते उसका आत्मा नहीं करता, हाथ चलते उसका आत्मा करता मानने वाला अजीव को जीव मानते हैं। मूंड मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, वितराग की आज्ञा की खबर नहीं उसको। समझ में आया? पीछे
अजीब से भिन्न पुण्य पाप का परिणाम शुभ अशुभ, वो दो ही आश्रय है, दो ही से बंध है, शुभ हो क्या शुभ हो, दो से बंध, अबंध नहीं, अबंध नाम सम्यक दर्शन नहीं, अबंध स्वभाव भगवान आत्मा चिदानंद मूर्ति, उसका अंतर में सन्मुख होकर सम्यक प्राप्ति होना वो शुद्ध भाव है। एक शुद्ध भाव वो संबर निद्रा है, आत्मा जीवद्रव्य है, वो समनिद्रा है, वो शुद्धि मुक्ति है, उनका आश्रय है, उससे बंद होता है जड़ की पर, यही जड़ बंद है, अजीब है। ऐसा भिन्न भिन्न सात तत्व का यथार्थ अंतर अनुभव पूर्वक श्रद्धा होना, उसका नाम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ आया भैया? हाँ। अरे भगवान का मार्ग में कहीं लूटा लूट हाली से चले, मार्ग कहाँ रहा न कहाँ मान के चले। समझ में आया? ये कहते हैं देखो, श्रावक को जितना शुभ भाव है वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, धर्म का फल संसार की गति नहीं। तो कहते हैं कि भाई आपने धर्म करते स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का तो बंद है, ये धर्म से बंद होता है। जीव भाव बंद हो ये धर्म है, समझ में आया? जीव भाव से बंद हो वो भाव धर्म नहीं, धर्म से बंद होता ही नहीं, धर्म तो समझ रहा है। नहीं समझे नहीं समझे। धर्म की मरे आत्मा का स्वभाव અને પુણ્ય પરિણામ એ ધર્મ नहीं, तो उससे बंद हो, बंद से स्वर्ग आदि मिले, धर्म से स्वर्ग मिले, અને स्वर्ग का जो भाव है वो धर्म है, धर्म से बंद हो तो छूटने का क्या उपाय? ये भाव है तीर्थंकर बनते भाव भी धर्म नहीं, बंद करा है ना, है बंद शुभ भाव है, 16 कारण भावना शुभ भाव है, सम्यक दर्शी जानते हैं क्या भाव आता है, और है बंद मेरी की तरह से बिना उसको मैं सम्यक दर्शन जानता हूँ ऐसे माने। समझ में आया? भान मोहे काई अने हम है जैन, जैन किसको कहना? कोई जैन का कहीं माथे लिबास मारिया जैन हो गया? भगवान सर्वज्ञदेव परमेश्वर त्रिलोकनाथ कहते हैं कि जिस श्रावक को शुभ भाव रहा उससे तो स्वर्ग मिला, और संबर और शुद्ध भाव है, ये धर्म की पूर्णता वो मोक्ष है। तीनों आ गया देखो, शुभ भाव जितना रहा श्रावक को, इसमें पुण्य बंद हो गया, बंद मिला, और आत्मा का स्वभाव का अनुभव करके जितना निर्विकारी अकसाई परिणाम हुआ उसका नाम समरिद्रा, पूर्ण शुद्धि हुई न मुक्ति। समझ में आया? वो चौथी गाँव पूरी हुई। लो ये आ गया सब आज नीचे लिखे ने, अब आज 109 थोड़ी 119 अज्ञान पूर्वक चारित्र संगत नहीं कहलाता है, है उसमें है। ये पुरुषार्थ सिद्धि पर का श्लोक है, नहीं सम्यक व्यपदेशम चारित्रम अज्ञान पूर्वकम लभ्यते ज्ञानांतरम उक्तम चारित्र आराधनम तस्मात्। अज्ञान नाम आत्मा का चिदानंद ज्ञाता दृष्टा का अनुभव का बांध बिना चारित्र सम्यक नहीं कहलाता। चारित्र को सम्यक लागू नहीं पड़ता, मिथ्या चारित्र है। मिथ्या चारित्र नाम राग की क्रिया है, इसमें चारित्र का आराधन ज्ञान होने के पश्चात का है। अपना अनुभव दृष्टि करना, पीछे ज्ञान अंतर स्वरूप का, पीछे चारित्र स्वरूप में रमता, पीछे चारित्र होता है। दर्शन ज्ञान बिना चारित्र होता नहीं। लो इसको क्या गाय पूरी 5 में क्या है भैया? पहला श्लोक, भावनाओं के चिंतन का कारण और उसके अधिकारी और उसका फल। साउथ मुनि लेता है। सम्यक दर्शन का पहला अधिकार आ गया, बहुत सम्यक ज्ञान का आ गया,
साव का व्रत का गया। अब मुनि की बात करते हैं। मुनि सकल व्रती वर भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। श्रावक हुए पीछे मुनि पढ़ा लेना बिना शांति होती, विशेष मुक्ति होती नहीं। ये भवजीव महाव्रतों का धारक भावलिंगी मुनिराज। मुनि दिगंबर होता है और अंतर में आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद की दशा। भगवान का शासन में मुनि उसको कहे, क्षण में सप्तम गुण स्थान आता है, आनंद 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 ही किला। क्षण में छठा गुण स्थान का विकल्प आता है। एक दिन में हजारों बार छठा सातवां गुण स्थान आते हैं, उसको भगवान का शासन में मुनि कहने में आया है। समझ में आया भैया? छठा सातवां गुण स्थान है ना, तो तीन कसाय का अभाव हुआ है अंतर, छठा गुण स्थान हुआ अंतर आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन। जो शावक को अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, उससे भी मुनि को बहुत आनंद बढ़ गया अंदर से। अतीन्द्रिय भगवान में से प्रवाह हुआ अंदर। तीन कसाय का नाश होकर मुनि पड़ा प्रकट होता है कि अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव में छठा गुण स्थान में जब है, तो उसको पंचमहावर्त का विकल्प होता है। पंचमहावर्त का विकल्प ये राग है, पुण्य, और क्षण में विकल्प सुन जाता है। अतीन्द्रिय आनंद का इकला गोवा, भिन्न क्षण में सप्तमा, क्षण में छठा, क्षण में छठवन, सप्तमा, क्षण में छठा। ऐसी भूमिका को भावलिंगी संत कहते हैं जैन शासन में। समझ में आया? याद रखेगा थोड़ा, उसकी नींद भी थोड़ी, इतनी ये काग नींद जितनी, पौनी सेकंड नींद आती है उसको। वाल्मीकि संत को पौनी सेकंड नींद आती है। पीछे के घर रही में आवेदन में 500 रही नहीं, पिछली रही में क्या है? पीछे छठी ढाल हो, वो छठी ढाल में है, छठी ढाल में एना पहला है ने स्वरूप आसन पहला। पिछली रेणी आवे છે શબ્દ હે એ પાંચમું છઠ્ઠી ડાળનો પાંચમો શ્લોક। समता संभारे ठूटी उचारे वंदना जिन देव को हित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम सजेव तन अमेव को जिनके न दंत धोवन क्लेश अंबर आवरण भूमिमाई पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन। मुनि दशा परमेश्वर पद पिछली रात में थोड़ा एक स्वयं जरी एक छठा हिंसा में प्रमद होता है, थोड़ा सेकंड, पौनी सेकंड, इतनी निंद्रा है। फिर जागृत होकर स्वप्न मंगल, फिर होकर छठा हो जागृत। समझ में आया? मुनि सुनो किसको कहना, दुनिया ही सुना नहीं। जिसको गणधर देव नमस्कार करे, 5 नवकार में नमो लोई सब सावन। आम नाना साधु को नमन नहीं करे नमन, पर गंधर भगवान का विराजते हैं ऐसे अभी सिमंदर प्रभु पास हैं। 12 वर्ष का 12 अंक का जब रचना करते हैं, नमो लोई सब हे अडिदीपमा संत मुनि आत्मज्ञानी ज्ञानी आनंद कंद में चलने वाला, हे संत तेरा चरण में मेरा नमस्कार। समझ में आया? गंधर का नमस्कार जिसका चरण में पौगे उसको मुनि कहते हैं। 5 नवकार विकल्प आता है ना, 12 उनकी रचना करते सब, तो गंधर 4 ज्ञान में चौदपुर अंतर्मुख में रखते हैं। वो भी जब विकल्प आया पंच स्मरण का अथवा रचना का, नमो लोई सब आई लोई शब्द लागू करते हो। आखिर में शब्द अंत दीपक है, अंत दीपक है।
नमो लोई सवरियंता मूलते में पहला नमो लोई सुनते हैं, नमो लोई सब में लागू करते हैं। नमो लोई सब सिद्धान, नमो लोई सब आयरियाण, नमो लोई सब जय, नमो लोई सब। ओ संत छठी सातवीं भूमिका आनंद में जुड़ने वाला, उसका चरण में नमस्कार मेरा है। गंधर्व नमस्कार करते हैं। ये दशा मुनि की जैन शास्त्र में गिनने में आई है। समझ में आया? ये मुनि व्रत की भावना कैसी है? मुनि भावना करते हैं यानी दशा कैसी है कि सावक से अनंत गुणी शांति बढ़ गई। ये भूमिका में बार भावना पाते हैं, उसका अधिकार चलेगा।